Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. I know that He is the lily of the valley. He is the bright and morning star. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Hallelujah. Hallelujah. The wind is blowing again. Wind is blowing again. Wind is blowing again. Wind is blowing again. Just like the day of the Pentecost, the wind is blowing again. Just like the day of the Pentecost, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Wind is blowing again. Just like the day of the Pentecost, the wind is blowing again. The lame are walking again. The lame are walking again. Just like the day of the Pentecost, the lame are walking again. Sing it. The wind is blowing again. Wind is blowing again. Just like the day of the Pentecost, wind is blowing again. The blind are seeing again. The blind are seeing again. Just like the day of the Pentecost, the blind are seeing again. The blind are seeing again. The blind are seeing again. Just like the day of the Pentecost, the blind are seeing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of the Pentecost, the wind is blowing again. The lame are walking. The lame are walking again. The lame are walking again. Just like the day of the Pentecost, the lame are walking again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of the Pentecost, the wind
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में खुशी की सुनी न सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों, दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। हर दम कोई तुमको जगाने आए, कभी जाग उठे फिर सोने लगे। हर दम कोई तुमको जगाने आए, कभी जाग उठे फिर सोने लगे। ऐसा कसती जा कुछ न मिले, तुम्हें याद दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। सोने वालों आ जाओ यीशु के चरणों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। जो ना माने मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते। जो ना माने मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते। ऐसा न समय फिर आए कभी, तुम्हें जीवन दिलाने कोई आया है। वो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों, दुनिया में तुमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई है। दुनिया में तुमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई है। तेरे मन की शांति पाने में तू सारी उम्र गवाई है। तेरे मन की शांति पाने में तू सारी उम्र गवाई है। मरने से पहले जरा सुन ले, तुम्हें मौत से बचाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों, मरने से पहले जरा सुन ले। We all know that death is very certain. हम सभी इस बात को जानते हैं कि मौत बिल्कुल एक तथ्य है। A foolish man will be the man who will never prepare for eternity. एक मूर्ख आदमी वही होगा जो अनंत काल के लिए अपने आप को तैयार नहीं करता है। Today is the day of salvation. परंतु उद्धार का दिन आज ही है। Don't postpone it for tomorrow. उसे आने वाले कल के लिए लंबित ना रखें। Don't say next time we will see. ये ना कहें कि अगली बार में
सोचूंगा, देखूंगा, it might be too late. शायद फिर अगली बार बहुत देर हो जाए। You might say, what we have to do then? आप कहेंगे, पूछना चाहेंगे कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं फिर? Believe on the Lord Jesus Christ. बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह पर तू विश्वास कर। He is the one who died for you on the cross of Calvary. वही है जो तेरे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान को दिया, Shed his blood, rose again the third day. अपने लहू को पूरा बहा दिया और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो उठा। You believe in your heart, तू इस बात को अपने मन में विश्वास कर ले your soul will be saved. और तेरा आत्मा उद्धार को पाएगा। So simple. इतना सरल है। Do it today. इस कदम को आज ही लें, Don't make it for tomorrow. इसे आने वाले कल के लिए ना रखें। We know what is happening all over the world. हम देख रहे हैं दुनिया भर में क्या घटनाएं हो रही है। Everywhere there is death. चारों तरफ वहां केवल मौत ही दिखता है। Displaced, people are displaced from their homes. लोग अपने घरों से स्थानांतरित हटाए गए हैं Lost everything. और Lost everything in हर life. कुछ जिंदगी में जो कमाया था सब खो दिया है। We brought nothing here, we take nothing out. हम इस दुनिया में कुछ लेकर आए नहीं हैं, न इस दुनिया की कोई वस्तु अपने साथ लेकर जाएंगे भी। So prepare for eternity. इसलिए अनंत काल के उस जीवन के लिए अपने आप को अभी तैयार करें। Shall we stand to our places and worship God for some आइए time? अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, परमेश्वर की उपासना हम करेंगे। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, जो कुछ है तूने दिया उसके बदले में क्या दूं? जो कुछ है तूने दिया उसके बदले में क्या कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, पिता धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ,
आशीषें तुझसे है मेरी। Blessed be your name. बिन मांगे तूने सब कुछ दिया, धन्यवाद का कटोरा। Glory, 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 उठा के मैं ये करूं, धन्यवाद का कटोरा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता बचाया तुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। Thank you Jesus, thank you Lord। मौत से बचाया तुझे, जीवन नया है दे दिया।
Lord a good clap offering this morning. धन्यवाद धन्यवाद यीशु हालेलुया 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 ग्लोरी 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 praise the Spirit takes over your soul. When the Spirit takes over the soul, all will be changed. When His glory will be revealed, when the Spirit takes over your soul. Take over our soul tonight, this morning, O God. When the Spirit takes over my soul, when the Spirit takes over my soul, all will be changed. When His glory will be revealed, when the Spirit takes over your soul. पवित्र आत्मा जब कब्जा करे, पवित्र आत्मा जब कब्जा करे, सब बदलेगा, सब बदलेगा, और आग उतरेगी। पवित्र आत्मा जब कब्जा करे, पवित्र आत्मा जब कब्जा करे, पवित्र आत्मा जब कब्जा करे, सब बदलेगा, आग उतरेगी। पवित्र आत्मा जब
You're beautiful beyond description. Too marvelous for words. I stand amazed in your presence. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words. Too marvelous for words. Too wonderful for comprehension. Like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description. Majesty enthroned above. Lord, I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. Holy God, to you all praise is due. I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. Jesus. Holy Spirit, you're welcome in this place. Holy Spirit, you're welcome in this place. Omnipotent Father, oh mercy and grace, you're welcome. You are welcome in this place. For here in your
presence is healing divine. No other power can heal, Lord, but thine. Holy Spirit, you are welcome in this place. 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 Fill this place with your presence, Lord Jesus. प्रभु यीशु इस स्थान को अपनी हुजूरी से भर दे। Your people have come to seek your face. तेरे लोग आज तेरी बाट जोहने, तेरे चेहरे को देखने आए हैं, to receive something from your hand. तेरे हाथों से कुछ पाने के लिए। Let every soul be satisfied. हर एक प्राण तृप्त होने पाए, Every body be healed. हर एक शरीर चंगा किया जाए। Still the storms which rage in their mind, I pray. उनके मनों में उठने वाले वो आंधियां शांत कर दिए जाएं। Your presence makes us whole. तेरी उपस्थिति हमें भला चंगा कर देती। Bless your people, O God. अपने लोगों को आशीष दे प्रभु। Give us utterance to speak your word. तेरे कलाम को बोलने की शक्ति दे प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Thank the Lord for this morning. परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए। Shall we turn our Bibles to John's Gospel, the 16th chapter? आइए अपनी बाइबलों को खोले यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय। John's Gospel, 16th chapter. यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय। We are reading verse 33. और उसकी 33वीं आयत से हम पढ़ रहे हैं। 33। These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world you shall have tribulation. Be of good cheer. I have overcome the world. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। Amen. आमीन। If you read the verses 12 and 13, यदि आप इसी के ही 12 और 13 आयतों को पढ़ें, Jesus is saying, I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. यीशु ने कहा,
मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। Howbeit, when the Spirit of truth is come, he will guide you into all truth, for he shall speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। He shall glorify me, for he shall receive of mine and shall show it unto you. वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। All that the Father hath are mine, therefore said I, he that shall take of mine and shall show it unto you. जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। These are the few words Jesus is speaking to his disciples. ये कुछ ऐसे वचन थे जो यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे थे In some of his closing messages during his earthly ministry. और उसके पृथ्वी की सेवकाई के दौरान उसकी कुछ बातें जो उसने कही हैं are found in 14, 15, 16 chapter of John's Gospel. वो यूहन्ना के सुसमाचार के 14 अध्याय, 15 अध्याय और 16 अध्याय में पाए जाते हैं। The Lord is pouring out his heart to his disciples. प्रभु यीशु अपने दिल की गहरी बातों को इन दिनों में चेलों के सामने उंडेल रहा था। And he is saying again and again, these things I speak to you. और वह उनसे बार-बार कहता था, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही हैं। There was, I don't know why he said those words. मुझे नहीं मालूम कि यीशु मसीह ने ऐसे शब्दों को क्यों कहा। But he wanted them to know that Jesus was personally interested in his disciples. परंतु वो चाहता था कि वो जाने कि यीशु मसीह अपने चेलों पे बहुत रुचि ले रहा है। And earlier he had said, इसके पूर्व में यीशु ने कहा था, my sheep hear my voice. मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती हैं। Hallelujah. Hallelujah. And they follow me. और वो मेरे पीछे चलती हैं। That means the shepherd is speaking. इसका अर्थ ये है कि चरवाहा बोल रहा है। Jesus is not stopped speaking. यीशु मसीह ने आज के युग में भी बोलना बंद नहीं किया है। He is always speaking to us. यीशु मसीह तो हमेशा से ही लोगों से बोलता आया It है। is that when we tune ourselves to God, परंतु ये तब जब हम अपने मन को पूरी तरह परमेश्वर की ओर लगाएं, when we keep silent and let him speak. जब हम अपनी बातों को विराम दें और परमेश्वर को बोलने दें। There are times when we pray and keep on praying. ऐसा भी समय होता है जब हम प्रार्थना करते हैं, करते रहते हैं। Good, it is good that we pour our hearts to God. अच्छी बात है कभी जब हम अपने दिल की बातों को उंडेल रहे हो प्रभु के सामने। But there is a time it comes when we keep silence. लेकिन प्रार्थना के दौरान एक ऐसा भी समय आता है जब हम पूरी तरह से चुपचाप बैठते हैं। This is the time we want to listen to what God has to say. ये वो समय होता है जब हम सुनना चाहते हैं प्रभु को क्या कहना है। That's why the Bible says, इसलिए तो बाइबल कहती है, they that wait on the Lord, वे जो यहोवा की बाट जोहते हैं, they will renew their strength. वे अपने बल को नया करने पाएंगे। Meaning, अर्थात wait for God to do something in our life. इंतजार करें कि परमेश्वर आपके जीवन में, हमारे जीवन में कुछ करे। We sang that chorus. हमने उस कोरस को अभी गाया। When the Spirit takes over the soul. जब पवित्र आत्मा Hallelujah. मेरे जीवन में कब्जा कर ले। Hallelujah. Hallelujah. When the Spirit takes over the soul, जब पवित्र आत्मा मेरे प्राण के ऊपर कब्जा कर ले, you will be changed, I will be changed. तो आप बदल जाएंगे, तब मैं भी बदल जाऊंगा। Amen. Amen. And that's the time His glory is revealed. और यही समय होता है जब परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में प्रकट होती है। These things I speak to you. यीशु ने कहा, इन बातों को मैंने तुमसे इसलिए कहा। In these last days, we have got to tune our voice to the voice of God. इन अंतिम दिनों में हमें अपने कान को परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए दृढ़ करना है। Many voices in this world. दुनिया में बहुत से लोगों की बहुत सी आवाजें हैं। Many preachers are in this world. बहुत से प्रचारक भी प्रचार कर रहे हैं। Some true and some false. कुछ सही प्रचार कर रहे हैं और कुछ गलत भी प्रचार
प्रचार कर रहे हैं। We need to know the voice of God ourselves firsthand. लेकिन इन सब के बीच में हमें परमेश्वर की आवाज को खुद ब खुद अपने लिए जानना जरूरी है। You and I need to read the word of God. आपको और मुझको चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, अध्ययन करें। Check on what is being spoken, whether it is there or not. जो बातें आप सुन रहे हैं उसको जांचिए, वो वचन में वैसा ही लिखा है अथवा नहीं। Take it in context and read. और जब बाइबल की कोई एक आयत को पढ़ते हैं तो उसके संदर्भ में जाएं और प्रसंग में उसे पढ़ें। Allow the Holy Ghost to speak to your hearts. पवित्र आत्मा को अनुमति दे, आत्मा मेरे हृदय से तू बातचीत He कर। shall take of mine वो यीशु ने कहा मेरी बातों में से लेगा and he will give it unto you. और वो उन बातों को तुम्हें बताएगा। Amen. Amen. There was a season एक ऐसा समय था when people would not understand things, जब लोग इन बातों को समझ नहीं सकते थे and without the Holy Ghost we cannot understand. और बिना पवित्र आत्मा के हम इन बातों को समझ भी नहीं पाएंगे So कभी। Jesus said like this. इसलिए यीशु मसीह ने ऐसा कहा। 12th verse he says, 12 आयत में कहता yet है I have many things to say unto you, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी but है, you cannot bear them now. परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। Meaning, अर्थात wait for the Holy Ghost to come and reveal things to you. अभी रुके रहो जब तक पवित्र आत्मा प्रकट होकर इन बातों को तुम्हें ना बताए। There are some revelations in the scripture which has been known partially to God's people. कुछ ऐसे प्रकाशन की बातें बाइबल में पहले ही सी थी, लेकिन उसको उन दिनों में लोगों ने पूरा समझ नहीं पाए थे। Paul says, I show you the mystery पौलुस तो कहता है मैं तुम्हें एक भेद की बात बताता हूँ which was hid from times and ages. जो युगों से, इतने कालों से छिपा रहा। So when Jesus was telling these people, जब यीशु मसीह इन बातों को अपने लोगों से कह रहे थे they were afraid. तो वे लोग उन बातों को सुनकर घबरा गए। Because in the first verse somewhere we read like this, क्योंकि पहले ही आयत में जहां से हमने पढ़ा वहां ऐसा लिखा है, they shall put you out of the synagogues. यीशु ने कहा वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे Whoever kills you will think he's doing God's और service. जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। So might be the disciple might have been perturbed. और चेलों ने ऐसी बातें सुनकर शायद विचलित हुए हों। He comes into verse 23. लेकिन जब 23 आयत में यीशु मसीह पहुंचे, These things I have spoken unto you, यीशु मसीह कहता है ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही हैं that in me you might have peace. और 33 आयत में कहता ताकि तुम्हें मुझ में शांति मिले। Amen. आमेन। Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Amen. आमेन। Listen, सुनिए, Jesus is saying, यीशु मसीह कह रहे these things I have spoken to you, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं that in Christ कि तुम्हें मुझ में अर्थात मसीह यीशु में you might have peace. तुम्हें शांति मिले। Amen. आमेन। There is no peace today आज in the world. समय में सारी दुनिया में कहीं पर भी शांति नाम की चीज नहीं है। People thrive on violence, लोग हिंसा का राह अपना रहे हैं। somehow which catches very quick, कोई ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी फैल जाती है। and evil spirits and all the forces of the enemy, the devil, सारी दुष्टात्माएं और शैतान की जो सारी फौज है, they take advantage of all what has been happening. वे तमाम जो हिंसा होती है उसका ये दुष्ट आत्माएं लाभ लेती हैं। In the world you will have tribulation, Jesus said. यीशु ने हमें बताया है संसार में तुम्हें क्लेश होता है, Be of good cheer. परंतु ढाढ़स बांधो। Hallelujah. आमेन। Amen. आमेन। In the midst of the storm, इस तूफान भरे दुनिया के बीच में, in the midst of corruption, इस भ्रष्टाचार से भरी दुनिया के बीच में, in the midst of wicked people, इस दुष्टता से भरे लोगों के बीच में, in the midst of violence and हिंसा war, और युद्ध से भरे इस दुनिया के बीच में Jesus said, यीशु कह रहा be of good cheer. तुम खुश हो जाओ। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. You know why? आप जानते क्यों? I क्योंकि मैंने have overcome the world. संसार को जीत लिया है। Amen. हालेलुया। Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। Amen. आमेन। You see, when we talk of the world in the Bible, देखिए जब हम बाइबल में संसार की बात करते हैं, it talks about people. वो लोगों की बात करते हैं। In every context there is a different flavor or different rendering to it. और
अलग संदर्भ में आप देखेंगे तो उसका अलग अर्थ निकलने लग जाता है दूसरे भागों में। When it says for God so loved the world, जहां पर यह लिखा है कि परमेश्वर ने इस दुनिया से या इस जगत से ऐसा प्रेम किया, meaning he loved mankind. अर्थात वहां पर मतलब यह है परमेश्वर ने इस मानव जाति से ऐसा प्रेम किया। Amen. आमेन। When he says जब वो कहता है devil is the prince of the world, कि शैतान इस संसार का राजकुमार है, Meaning सरदार है, अर्थात he holds the worldly system in his hand. उसका मतलब वहां संसार का यह है कि संसार की जो व्यवस्था है वो शैतान अपने कब्जे में रखता है। Again, फिर से when it says love not the world, जहां पर यह लिखा है कि संसार से प्रेम ना करो, meaning वहां पर संसार का अर्थ the sins of this world. इस संसार में पाए जाने वाले पाप से तुम लालसा या उसे प्रेम मत करो। So when you read the scripture, even John's gospel and in his epistles, और इसलिए जब आप बाइबल को पढ़ते हैं और यूहन्ना के सुसमाचार और पत्री में much is mentioned about the world. वहां पर बहुत कुछ संसार के बारे में लिखा है। And we know the worldly system is controlled by politics also. और हम ये भी जानते हैं आज पूरी दुनिया के देश राजनीति से संचालित और नियंत्रित हैं। One ruler can do harm and one ruler can bless the nation. एक आदमी ऐसा आएगा जो पूरी दुनिया को अच्छा भी कर सकता है या उसे बिगाड़ सकता है। But remember one thing, परंतु एक बात को याद रखें, the earth is the Lord's. ये पृथ्वी हमारे परमेश्वर की है। Hallelujah. Amen. And the fullness thereof. और इस पृथ्वी पे पाए जाने वाली उसकी सारी भरपूरी भी He has given it to the children of men. परमेश्वर ने उसे मनुष्य की संतानों को दिया है। Amen. Hallelujah. Not 1 inch belongs to the devil. इस पृथ्वी का 1 इंच जमीन भी शैतान उसका मालिक नहीं है। God is the owner. परमेश्वर इस पृथ्वी का मालिक और हकदार है। But after Adam fell, लेकिन आदम के पाप में गिरने के बाद he handed over this authority to the devil. आदम ने अपने अधिकार को शैतान के हाथ में दे दिया। And the devil, I do not know, but some thought comes to my mind. और शैतान, मैं ये नहीं जानता कि कुछ बात मेरे मन में आती है। He is offering Jesus. वो यीशु मसीह के सामने एक प्रस्ताव रख रहा है। He took him to a high mountain, शैतान यीशु मसीह को उस ऊंचे पर्वत पे ले गया, showed him all the kingdoms of the world. वहां से दुनिया के सारे राज्य साम्राज्य वैभव दिखाए। And he says, saying to him, और सब दिखाने के बाद यीशु से कहता है, you fall down, worship me. तू केवल मेरे सामने गिर और मुझको दंडवत कर, All this will be ये yours. सारा दुनिया और उसका वैभव मैं तुझे दे दूंगा। Do you think he meant it? क्या आपको लगता है कि शैतान यूं ही बोल रहा था या गंभीरता से बोल रहा था? Then if he will give all the kingdoms, what will he have? यदि वो सारे दुनिया को और उसके वैभव को यीशु को दे देगा, फिर उसके पास क्या बचेगा? He knew for certain उसे एक बात ठीक से मालूम थी he has usurped God's kingdom. कि ये राज्य जो हाँ, शैतान ने हड़पा है वो परमेश्वर का था जिसको शैतान ने हड़प लिया है। Amen. आमेन। No way he was going to submit himself to the authority of Christ. और इसीलिए किसी भी कारण से वो यीशु मसीह के अधिकार के सामने झुकने वाला कभी नहीं था। Amen. आमेन। We know he's a liar. हम जानते हैं शैतान झूठा है। Today lies is like anything. आज झूठ कितनी सामान्यता से लोग बोलते हैं। News is lies. Newspaper is lies. समाचार में भी झूठ और अखबारों में भी झूठ छाप दिए जाते हैं। Speeches are all lies. और भाषण भी सब झूठ बोल दिया जाता है। The world lies in wickedness. और पूरी दुनिया आज ऐसी दुष्टता के अंदर समाई हुई है। That's why Peter preaching on the day of Pentecost says, इसलिए पेंतिकुस्त के दिन में पतरस खड़ा होकर प्रचार करता है, save yourselves अपने आप को बचाओ from this crooked generation. इस टेढ़ी जाति से। What they speak, they don't mean. जो यहाँ के लोग बोलते हैं उसका मायने नहीं रखते। Life of man is nothing, doesn't mean anything to them. मनुष्य की जिंदगी उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखती है। These men rule. इन लोगों ने दुनिया के ऊपर राज्य किया है। That's the system the devil has in his hand. और उस व्यवस्था को शैतान अपने हाथ में पकड़ा हुआ। The innocents die like anything. निर्दोष मनुष्य यूं ही कुचले और मर जाते हैं। And you wonder why this wicked prosper. और आप मन में सवाल करते हैं दुष्ट लोग कैसे तरक्की करते हैं।
3 men, maybe 4 in the scripture. 3 या पवित्र शास्त्र में से 4 लोग हैं They questioned God. जिन्होंने परमेश्वर से ये सवाल पूछा था, Why? How do the wicked prosper? कि दुष्ट लोग क्यों और कैसे उन्नति करते हैं। David was also दाऊद ने भी एक questioning समय God. परमेश्वर से पूछ लिया। Jeremiah says, यिर्मयाह नबी बोलता है, Lord, let me talk with you. प्रभु मुझको तुझसे वाद विवाद करना है। How does the wicked prosper? बता दुष्ट कैसे तरक्की करता है। Job also a perfect man. अय्यूब जैसा खरा और सीधा आदमी बोलता है। He wondered at the prosperity of the wicked. वो अचंभा करता था, दुष्ट लोगों में कोई समस्या नहीं आती, वो कैसे तरक्की करते हैं। You and I are not alone. मैं और आप इस सवाल को करने वाले अकेले लोग नहीं हैं। Others have done it. दूसरे लोगों के मन में भी ये सवाल आया है। I think मैं सोचता हूँ when David says, till I went into the house of God. जब दाऊद कहता है, उस दिन तक सवाल करता रहा जिस दिन तक मैं प्रभु के घर नहीं गया। I saw them, they are in slippery places. प्रभु के घर में मुझे पता चला ऐसे लोग तो फिसलन भरी जमीन में खड़े हैं। One slip and they go for eternity, forever and ever. एक कदम बस फिसलेगा और अनंत काल की मौत में Deep into fire and lake of fire. आग की झील और उस नरक की आग में डूब जाएंगे। Remember, याद रखें, Bible says, बाइबल बताती है again and again and again, बार बार और फिर बार बार बोलती है, the wicked will perish. दुष्ट नाश हो जाएगा। Amen. आमीन। May not be according to our time. हो सकता है हमारे समय के अनुसार ना हो। God is a righteous judge. परमेश्वर एक धर्मी न्याय करने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। In his time, परमेश्वर अपने सही वक्त में the wicked like a chaff will be blown away. वो दुष्ट जो स्थिर दिख रहा भूसी की नाई उड़ जाएगा, The righteous, परंतु धर्मी जन hallelujah, हालेलुया shall inherit the earth. वो पृथ्वी का अधिकारी होगा। Amen. आमीन। The world belongs to the Lord. ये पृथ्वी परमेश्वर की है। And you find it is written in the book of Revelations, 11th chapter, 15th verse. आप पाएंगे कि प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 15 अध्याय, 11th chapter, 11 अध्याय और 15th उसकी verse. 15 आयत में, It says, and the seventh angel sounded. जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी, There were great voices in heaven. तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे। The kingdoms of the world are become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. आमीन। Hallelujah. जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वो युगानुयुग राज करेगा। Hallelujah. हालेलुया। When heavens will move, जब स्वर्ग हरकत करेगी। you know, Jesus, when he taught us to pray, यीशु मसीह ने जब हमें प्रार्थना करना सिखाया, what he said? उसने क्या कहा? When you pray, जब तुम प्रार्थना करो, say, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. तो कहना, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। Thy kingdom come. तेरा राज्य आए। Amen. आमीन। Your will be done तेरी इच्छा पूरी हो, as it is done in heaven. जैसे स्वर्ग में तेरी ही इच्छा पूरी होती है, So let it be done on earth. वैसी ही पूरी पृथ्वी पर भी हो। Amen. आमीन। He rules. वो शासन करता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. Jesus is saying, यीशु कह रहे, be of good cheer. ढाढ़स बांधो। Don't be worried about what's happening around you. चारों तरफ जो घटनाओं को देखकर विचलित मत हो। Don't let your hearts fail you. तुम्हारा मन विचलित ना हो, I have overcome the world. क्योंकि सुनो, मैंने जगत को जीत लिया है। Hallelujah. हालेलुया। He's saying this much before his crucifixion and resurrection. और ध्यान रहे इस वचन को यीशु मसीह ने अपने क्रूस में चढ़ाए जाने के पहले बोला है। Amen. Amen. I have overcome. मैंने संसार को जीत लिया है। It's not that I will be overcoming.
saying. उसने ये नहीं बोला कि मैं आगे चलकर संसार को जीत जाऊंगा. He is talking of present. वो तो वर्तमान में बोल रहा है. You be of good cheer. कि तुम लोग अब खुश हो जाओ. Don't be afraid, fear not. अब डरो मत, चिंता मत करो. I am victorious. मैं जय पा चुका हूँ. Amen. Over this world you are afraid of. ये संसार जिससे तू आज डर रहा है. The world which is offering you only hate. वो संसार जो तुझे केवल नफरत दे रही है. Murder. हत्या. All kinds of violence. हर किस्म की हिंसा. Don't be afraid of them. इन बातों को देखकर डर मत. I've already overcome them. क्योंकि मैं जीत चुका हूँ इस संसार के ऊपर. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Then he goes on to say तब वो आगे बोलता है in the Lord's Prayer, प्रभु की प्रार्थना में, for thine is the kingdom. जो कि राज तेरा है. Hallelujah. Hallelujah. The power, पराक्रम, the glory महिमा is yours. तेरी ही है. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory. प्रभु को महिमा मिले. Amen. Amen. Lord's Prayer. प्रभु की प्रार्थना. Oh, glory, glory, glory. ओ प्रभु की महिमा हो. Let your kingdom come. तेरा राज. Let your will be done on earth. तेरी इच्छा पूरी On the earth इस पृथ्वी पर वैसे ही as it is done in heaven. जैसे पूरी होती है स्वर्ग में वैसे ही हो. Glory to God. प्रभु को महिमा मिले. For thine is the kingdom, क्योंकि राज्य तेरा है. the power, पराक्रम उसका तेरा है. and the glory और महिमा की भरपूरी forever. सदा 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 तक. Forever. सदा सदा तक. Glory to God. प्रभु को महिमा मिले. Amen. आमेन. Kingdoms come and kingdoms go. इस दुनिया के राज उठते हैं और चले जाते हैं. Crowns and thrones may perish. मुकुट और सिंहासन भी जो कभी थे नष्ट हो जाएंगे. Kingdoms rise and wane. राज्य उठेंगे, विलुप्त हो जाएंगे. But the church of Jesus, परंतु देखो यीशु मसीह की कलीसिया को, constant will remain. वो तो दृढ़ और स्थिर बने रहेगी. Hallelujah. Hallelujah. The gates of hell can never. अधोलोक के फाटक भी नहीं हो पाएंगे. Against the church prevail. मसीह की कलीसिया पे प्रबल. Hallelujah. Hallelujah. We have Christ's own promise. क्योंकि हमारे पास खुद यीशु का वायदा है. And that cannot fail. और वो वायदा असफल नहीं होता. Be of good cheer. इसलिए तू ढाढ़स बांध, खुश हो जा. I have overcome the world. मैंने संसार को जीत लिया है. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory. प्रभु को महिमा मिले. The kingdoms of the world. संसार का राज्य, The end is going to be like that. उसका अंत ऐसे ही होने वाला है. And the seventh angel sounded in Revelation. और जब सातवें दूत ने प्रकाशित वाक्य की किताब में तुरही फूकी, There were voices in heaven. तो स्वर्ग में बड़े बड़े शब्द होने लगे. What were they saying? ये क्या शब्द हो रहे थे? They were saying, वो लोग क्या कह रहे थे? kingdoms of this world have become the kingdoms of Christ and his God. जगत का राज्य हमारे प्रभु का और मसीह का राज्य हो गया है. Hallelujah. Hallelujah. Not only that, न केवल इतना, he shall reign forever. परंतु वो युगानुयुग राज करेगा. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Listen, सुनिए, we are not serving a defeated Christ. हम आज एक पराजित मसीह की सेवा नहीं कर रहे हैं. Christ is an overcomer. वो मसीह जो सब बातों में जीता है. He overcame Satan. शैतान पे जीता है. He overcame sin. पाप पे जीत गया है. He overcame hell. वो नरक पे जीत हासिल He किया. overcame death. उसने मौत को हरा दिया है. He overcame the grave. उसने कब्र को हरा दिया है. And he offers us the victory. और वो हमको जय का प्रस्ताव दे रहा है. Hallelujah. आमेन. He's the one who's saying, वही है जो कह रहा है, I have overcome the world. मैंने संसार को जीत लिया है. We know the world has its own power, हम जानते हैं इस दुनिया के पास में उसकी अपनी ताकतें हैं, attraction, उसके अपने आकर्षण हैं, pull, उसका खिंचाव है. even so much so that Demas loved the world and left God. इतना कि पौलुस का सहकर्मी देमास भी संसार को प्रिय जानकर पौलुस का साथ छोड़ दिया. You see, we are all pilgrims on this earth. देखिए, याद रहे, हम सब इस दुनिया में तीर्थ यात्री के रूप में ही हैं. We run our race and we go. अपनी दौड़ को अच्छे से दौड़कर हमें इस जगत से कूच करना है. Look unto Jesus. यीशु की ओर ताकते हुए. Amen. आमेन.
He is the author, the finisher of our faith. जो तेरे इस विश्वास का करता है और पूर्ण करने वाला है। Don't look to your right and left. अपने दाहिने अपने बाएं मत देख, Many will fall. बहुत तुझको गिरते हुए दिखेंगे, Straight run. परंतु तू आगे देख और दौड़ता For the रहे। price of the high calling in Christ उस Jesus. बड़ी कीमत के लिए Amen. जो बड़ी बुलाहट मसीह ने तेरे जीवन में किया I है। press towards the mark. मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। Glory. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I press. मैं दौड़ा चला जाता हूँ। We are called to be overcomers. हम जयवंत लोग बनने बुलाए गए हैं। Amen. आमेन। Not a defeated person. पराजित लोग नहीं। We should not settle down for what we have. हमारे पास जो है उससे हमें संतोष करके रुकना नहीं चाहिए। Last time we heard, be content. पिछली बार हमने सुना था संतुष्ट होकर बैठ जाना। Not in spiritual life. आत्मिक जीवन में नहीं रुकना है, Never stop. कभी नहीं रुकना है, Keep climbing. परंतु ऊपर और ऊपर चढ़ते रहना है। Amen. आमेन। Keep climbing. चढ़ते ही रहना है। We should not settle down. हमें किसी भी स्थिति में बैठना नहीं है। We are called to transform the world. हम दुनिया को परिवर्तित करने के लिए बुलाए गए हैं। We are in the world. हम जगत में हैं, We are not of the world. लेकिन जगत के नहीं हैं। Amen. आमेन। We are called to transform our society, our nation, our city. अपने समाज, अपने नगर, अपने देश में एक परिवर्तन, एक बदलाव लाने के लिए हैं। We have settled down for the lower part, and we said, oh, it's all right now. We have to live like this only. हम कुछ निचले भाग की आशीषों को पाकर हम रुक जाते हैं। चलो अब ये ठीक है, मैंने पा लिया है। The scripture says you are not called to be the tail but the head. पवित्र शास्त्र कहती है कि परमेश्वर ने तुझको पूंछ बनने के लिए नहीं, परंतु सिर बनने के लिए बुलाया है। Most of the inventors were God-fearing men. अधिकतर वे लोग जिन्होंने किसी चीज का आविष्कार किया, वे परमेश्वर का भय मानने वाले विश्वासी लोग थे। Amen. आमेन। We talk of JCB. हम रोज जेसीबी की बात करते हैं। You go and don't Google it now, but you go afterwards. आप अभी नहीं, घर जाकर आप इस बात को देखिएगा। It's a name of a man. वो एक आदमी का नाम है। Inventors of great things, even medicines and bulb and motor vehicles, automobiles. बड़ी बड़ी आविष्कार करने वाले, चाहे औषधि के, दवाइयों के क्षेत्र में हो, गाड़ियों के क्षेत्र में हो, मशीनों के क्षेत्र में हो, All सब God-fearing men. परमेश्वर का पर विश्वास करने वाले लोग थे। The early missions brought education. आरंभ के मिशंस ने दुनिया में शिक्षा लेकर आई, Took away the darkness of being ignorant. और अंधविश्वास और अज्ञानता को उन्होंने समाज से दूर किया। Schools were opened. और उनके प्रयास से स्कूल जगह जगह खुलने लगे, We call them mission schools. और लोग आरंभ में उनको मिशन स्कूल के नाम से जानते थे। Mission hospitals were the मिशन ones. हॉस्पिटल के रूप में वो पहचाने जाते थे। Orphanages, अनाथ आश्रम उन्हीं लोगों ने तैयार किया। old people homes. वृद्ध लोगों के लिए आश्रम उन लोगों की सोच थी। These were all hands of the church to serve people. ये सब यीशु मसीह की Arms. कलीसिया की बाहें थी, जो कलीसिया से हटकर भी सामाजिक काम कर रहे थे। And slowly we find that we have lost everything. और धीरे धीरे हम पाते हैं कि हमने एक एक करके इन सब को खो दिया। Closed down so many of. बहुत से संस्थाएं बंद कर दी गईं। Early days, शुरुआत के दिनों में most of the teachers were Christians. अधिकतर टीचर जिनको रखा जाता पढ़ाने के लिए मसीही पृष्ठभूमि से आने वाले लोग थे। If most of them, not all. अधिकतर, सभी तो नहीं। Professors were Christians. और प्रोफेसर्स भी मसीही लोग थे। Nurses were Christians. नर्सेस मसीही लोग थे।
Almost all the nurses were Christians early days. और लगभग सभी नर्स मसीही समुदाय में से ही लिए जाते थे. Few doctors that were giving service, selfless service, were Christians. और कुछ डॉक्टर भी थे जो कि बिना किसी स्वार्थ के सेवा कर रहे थे. These are all service for God. ये परमेश्वर की सेवा मानकर सेवा कर रहे थे. But through the years, others have overtaken us. परंतु समय बीतते बीतते दूसरे लोग भी उसमें वो लोग प्रवेश करने लगे. The service part is not there now. अब सेवा का वो भाव वहां पर पाया नहीं जाता. Not all. There are some people who are very genuine. अभी भी बहुत से सही सेवा भाव वाले लोग हैं. But most of them have become commercial. परंतु अधिकतर लोगों ने उसे व्यावसायिक बना दिया है. I was talking to one man, मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, and he was saying that every village they have an agent. वो कह रहे थे कि हर एक गांव में वहां एक उनका एजेंट है Of some local hospital in the city. किसी भी शहर में पाए जाने वाले बड़े बड़े अस्पतालों का प्रचार करने वाला कोई आदमी, उनका आदमी गांव में पाया जाए. He's a contact man. और वही उस अस्पताल का एक संपर्क सूत्र है. And he earns his money by commission. और उसको कमीशन मिलता है, उसके द्वारा उसकी कमाई होती है. So it has become a profession. और इसलिए ये एक व्यवसाय बन गया है. I will take you to so and so place. कि मैं आपको, चलो आप बीमार हो, मैं आपको इस जगह ले चलता हूँ. And he gets commission from there. और उसको उस अस्पताल वाले कमीशन देते हैं. And there are commission with the pharmaceuticals. और दवाई की दुकानों के साथ भी ऐसा ही संबंध है. And it's all become so complicated that we will not understand it. और वो इतना पेचीदा है कि हम उनकी गहराइयों में हम नहीं जा सकते. What is happening in the ICU in many places, you do not know what's happening. बहुत से स्थानों में आईसीयू में क्या होता हम नहीं जान पाते हैं. What is the medicine going in? What is it? We do not know. कौन सी दवाई लगाई जा रही है, कौन सी दवाई नहीं लगाई जा रही है, बाहर व्यक्ति को नहीं पता हो पाता है. So many people who are educated are operating people and taking out their kidneys. और बहुत से पढ़े लिखे लोग किसी का ऑपरेट करके उसको बिना बताए उसकी किडनी, गुर्दे को निकाल दे रहे हैं. Just selling it for money. और बेच रहे उस गुर्दे को कुछ पैसा कमाने के लिए. What I want to tell you is, मैं आपसे क्या कहना मांग रहा हूं. we need to rise up to our situations. हमें अपनी परिस्थितियों के सामने जागना होगा. Amen. आमीन. Do our best for God. परमेश्वर के लिए जो सबसे उत्तम है उस कार्य को हमें सेवा करनी है. If they are corrupt, we should not be corrupt. यदि वे गलत हैं तो हमें सही और उचित होना है. If they are earning money by unfair means, we cannot do that. यदि वो गलत तरीके से धन अर्जित कर रहे हैं, हमें उस काम को नहीं करना है. There are exceptions to the rule. और इन नियमों में भी वहां पर कुछ अलग प्रावधान हैं. There are some people who have been truly dedicated on service of कुछ परमेश्वर की, मनुष्यों की सेवा करने के लिए समर्पित लोग हैं. But किंतु in some ways we have given up and settled down. कुछ कारणों से हमने इन सब को मान लिया और हम बैठ गए. Instead of believing what Jesus has said, इसके बजाय कि बाइबल में यीशु मसीह ने जो बातें कही उस पर Jesus said, विश्वास करने. I have overcome the world. यीशु मसीह ने हमें बताया कि मैंने जगत को, संसार को जीत लिया है. Where are we looking? हम इस वचन से किस तरफ देख रहे हैं? Are you here? क्या हम साथ में हैं? Amen. आमीन. Don't look at the situation. अपने अगल बगल की परिस्थिति की तरफ ना देखें. The secret is not in you. वो भेद, वो रहस्य आपके अंदर नहीं है. It is Christ in you. परंतु वो मसीह जो तेरे अंदर है, वहां पर भेद छिपा है. Hallelujah. हालेलुया. The success is not in you. तेरी कामयाबी तुझ में नहीं है. The success is Christ in you. तेरी कामयाबी उस मसीह यीशु में है जो तेरे अंदर है. Amen. आमीन. The strength is not in you. तेरा बल वो तेरा नहीं है. The strength is the Christ in you. जो तेरा बल है वो उस मसीह का है जो तेरे अंदर है. The ability is not you. योग्यताएं तेरी नहीं है. It is Christ in you. वो उस मसीह की है जो तेरे अंदर है. Hallelujah. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. आमीन. Amen. आमीन. Colossians 1st chapter. कुलुस्सियों पहला अध्याय.
verses 26-27. और उसका 26 और 27 आयत। Okay, verses 25, we'll read from verse 25. इसके पिछली आयत 25 आयत से हम क्यों ना इसको पढ़ लें। Wherefore I am made a minister according to the dispensation of God, which is given to me for you to fulfill the word of God. जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। Again, फिर से, wherefore I am made a minister according to the dispensation of God, which is given unto me for you to fulfill the word of God. जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। God gave something to Paul परमेश्वर ने पौलुस को कुछ चीज दी that he might deliver it to us. ताकि वो उन बातों को हमें बताए। 26. 26, Even the mystery which had been hid from ages, from the generations, but now is made manifest to the saints. अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। Some mystery which was hid from ages. कुछ ऐसी गुप्त बातें थी जो पीढ़ियों से वो गुप्त थी। We come to salvation, we put our brakes. हम उद्धार पाने के दिन तक हम Put our brakes after salvation. उसके उद्धार पाने के बाद हम गाड़ी को ब्रेक लगा के रोक देते हैं। We put it in parking. हम उसको पार्किंग में खड़ी कर देते हैं। There's such a lot to go. वहां पर अभी लंबी रास्ता तय करना है। Amen. आमेन। Don't put your vehicle in parking. अपने उद्धार की गाड़ी को वहीं पर रोक मत दीजिए। Bring it on the 4 lane. परंतु उसको महामार्ग में, राजमार्ग में लेकर आइए। Hallelujah. आमेन। There is so much to gain. वहां पर आशीष को हासिल करने के लिए कितना और रखा है। Amen. आमेन। We fill the fuel of the Holy Ghost. हम पवित्र आत्मा का ईंधन भरते हैं। In the power of God. परमेश्वर की सामर्थ से भर Power of जाते the word हैं। of God. उसके वचन से भर जाते हैं। What more you want? इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? Put your leg on the gas. आप सीधा अपने पांव को उस एक्सेलरेटर में लगाइए। Hallelujah. हालेलुया। Shoot. और Amen. भागिए। Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। He's saying the mystery. वो कह रहा है वो रहस्य की बात। You know, nowadays cars have become so complicated. आजकल गाड़ियां भी इतना कठिन हो गई हैं। At least for us. हमारे लिए कम से कम। Earlier, पहले open the carburetor yourself, clean it, put it back. खुद ही कोई आदमी गाड़ी का कार्बोरेटर खोल के साफ करके लगा लेता था। Fuel pump also. फ्यूल पंप को भी। Now everything is sensor. परंतु अब उसमें सेंसर लगा है। That is the mystery. ये एक भेद है which we never knew. जिसको हम कभी जानते It नहीं। was always there. वो वहां पर था। Hallelujah. Amen. Somebody discovered. किसी ने उसका आविष्कार किया। No more tuning air and this and that in the अब carburetor. हवा और ईंधन का ट्यूनिंग करने की वहां जरूरत नहीं। It's already tuned. वो तो पहले ही वहां पर ट्यून हो रखा है। Glory to God. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। The mystery is here. वो भेद इस वचन के अंदर है। Glory to God. हालेलुया। It was hid. वो तो छुपा था। Penicillin was not known earlier. पेनिसिलिन दवा को लोग पहले नहीं जानते थे। Somebody discovered it. किसी ने उसकी खोज की। Saved so many lives. और उसकी खोज ने हजारों लोगों को मरने से बचाया। Smallpox और जो माता आती थी and diphtheria was so many things. और बहुत सी अन्य ऐसे बीमारी पाए जाते थे। So many medical people are here, so I must stop now only. और मेडिकल वाले बहुत से लोग यहाँ बैठे, इसलिए मैं आगे नहीं जाऊंगा। Because I might say something which is not there. शायद कोई ऐसी गलत चीज बोल दूं जो वहाँ पर उनके विज्ञान में नहीं है। We are only knowing crocin and disprin. हम क्रोसिन और डिस्प्रिन जानते हैं। Both have got sin. और ये सिन से इसका अंत होता है। Crocin. क्रोसिन, एनासिन, Anyway, जो भी।
New discoveries. नए नए खोज हो रहे। Nokia was one of the phones which was on top. और एक समय नोकिया फोन सबसे ऊंचाइयों में एकमात्र फोन था। Everybody very proud Nokia. सब लोग उसको घमंड से लगाते थे। Others were pressing forward. लेकिन दूसरे भी उस दौड़ में आगे बढ़ रहे थे। They were discovering new things, getting into now new things. नई नई ज्ञान को, नई नई सूचनाओं को प्राप्त कर रहे थे। And very less is heard of Nokia. और आज उसका बहुत कम सुनने को मिलता है। Others have overtaken. दूसरे आगे बढ़ निकले हैं। I'll show you a mystery. पौलुस कहता है, Hallelujah. मैं तुम्हें एक भेद की बात Hallelujah. आमीन। This mystery ये भेद is hid from years and years, from many ages. ये समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा। Now परंतु it is manifest to the saints. परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। What is the mystery? वो भेद क्या था? 27th verse. 27 आयत। To whom God will make known what is the riches of his glory of this mystery. जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। Christ in you. और वो ये है कि मसीह जो तुम में रहता है is the hope of glory. वही महिमा की आशा है। Amen. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Who? कौन? Not me. मैं नहीं, Christ in me. वो मसीह जो तुम में रहता है। Hallelujah. Hallelujah. Paul says, पौलुस कहता, no longer I who live. अब मैं नहीं जो जिंदा हूं, Christ lives in me. परंतु मसीह यीशु मुझ में जीवित है। Amen. आमेन। Have a look inside. अपने अंदर देखें, He is powerful. वो कितना बलवान He is है, glorious. वो कितना महिमा से Hallelujah. भरा है। Hallelujah. That Christ is in us. वही मसीह हमारे अंदर है। That is the mystery. वही भेद की एक बात है। So you will not be the tail, you will be the head. और इसलिए अब तू सिर रहेगा, पूछ नहीं। Amen. आमेन। Your promotion is coming. तेरा तरक्की, तेरी उन्नति आ रही है। When you peep inside, और जब तू अपने अंदर झांकेगा, you see the glorified one. तू उस महिमा से भरे प्रभु को देखेगा। God has revealed this mystery to his saints. परमेश्वर ने इस भेद को अपने पवित्र लोगों पर प्रकट किया है Christ in you, कि मसीह जो तुम्हारे अंदर है, hope of glory. वही महिमा की आशा है। Where is boasting then? फिर हमारा घमंड कहाँ रहा? Nothing. कुछ भी नहीं। Turn with me to 1 John, पहला यूहन्ना मेरे साथ खोलिए 4th chapter. और उसका 4था अध्याय। पहला यूहन्ना पत्री 4था अध्याय। Fourth verse. और उसकी 4थी आयत। John writing to the believers says like this. यूहन्ना विश्वासियों के बात लिखते हुए ऐसा बोलता है, You are of God, little children, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो and have overcome them, और तुमने उन पर जय पाई है, because greater is he that is in you than he that is in the world. क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। Amen. Amen. Who is in sansar? संसार में कौन है? The devil. शैतान जो है। All the time we are talking about him only. हम पूरे समय शैतान का ही चर्चा करते हैं। वहां से आया था, वहां से शैतान आया था, टूनी नाई, वहां से टोनी आई, बाल खुला था उसका बाल खुला था, दांत चमक रहे थे, और दांत चमक रहे थे। ऐसा करके देखी, वो वैसा करके देखी। हाँ फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? घुंघरू का आवाज आया। घुंघरू का आवाज आया। किधर से? किधर से आया? वो खिड़की से। खिड़की से आया। फिर बिल्ली ने वहां से म्याऊं बोली। बिल्ली का भी रोने का आवाज आया। म्याऊं म्याऊं करते करते, और वो म्याऊं म्याऊं करते, they begin to talk म्याऊं म्याऊं, और बिल्लियां बात करने लगी। Always talking. हमेशा हम बात किसकी कर रहे हैं? बुरी छाया पड़ गई। बुरी छाया। वो नींबू और प्याज is there. नींबू और प्याज, मिर्ची नींबू और मिर्च, प्याज नहीं। प्याज से तो सैलेड बन जाएगा। These are things are there. I don't. ये चीजें दुनिया में हैं, हम इसका इनकार नहीं कर रहे हैं।
Greater is He who is in you. परंतु बाइबल कहती तू देख जो तेरे अंदर है Amen. वो बढ़कर है. Hallelujah. Amen. When you are afraid, जब तू डरे, when the devil knocks your door, जब शैतान द्वार खटखटाने का प्रयास करे, let Jesus open it. यीशु मसीह को भेज दो दरवाजा खोलने. Yes. हाँ, क्या बात है. Back up. पीछे हट के भागेगा. Amen. आमेन. You have overcome them. तुमने उन पर जय पाई है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Greater is He who is in you जो तुम में है वो बड़ा है उससे जो संसार में है. than he that is in the world. उससे बढ़कर है जो संसार में है. 5th chapter. 5वां अध्याय. 1 John 5th chapter. पहला यूहन्ना इसी का 5वां अध्याय 4th verse. 4थी आयत. 4th chapter 4th verse. 5th chapter 4th verse. 4था अध्याय 5वीं आयत. 5वां अध्याय 4थी आयत. 4 4 5 4. Okay. For whosoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है. Who is he that overcometh the world? संसार पर जय पाने वाला कौन है? You. आप. But he that believeth that Jesus is the Son of God. केवल वो जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है. Amen. आमेन. So, don't go on the back foot. इसलिए अब कदम पीछे रखने का नहीं, आगे बढ़ के मारो. आगे बढ़कर शैतान को मारना है. Amen. आमेन. Leave the crease. क्रीज से बाहर जब निकल जाते हैं, The batsman knows exactly बैट्समैन को मालूम रहता है the timing to get the ball over the fence. कि कौन सा समय लेकर वो गेंद को उछाल दे फेंस के बाहर. The whole crowd is excited. और पूरी भीड़ उठकर चिल्लाने लगती है. Gone. और वो जो छक्का जाता है. Some old people in the house get very disturbed, you know, घर में कुछ बुजुर्ग लोग शोरगुल से परेशान हो जाते हैं. because the young children, mara. बच्चे लोग वो बड़े जोश में चीख रहे, चिल्ला रहे टीवी देखकर. क्या हो गया तेरे को? और बुजुर्ग लोग पूछते क्या हो गया है तेरे को? अजीब अजीब हरकत कर रहे. What is happening? क्या हो रहा है? One ball is going over the fence. एक छोटा सा इतना बड़ा गेंद है वो बाउंड्री के बाहर जा रहा है. बस Football. फुटबॉल. One piece of leather going into 2 poles. 2 खंभों के बीच में गेंद को एक आदमी ने डाल दिया है. Whole crowd stands. अब पूरी भीड़ खड़े होकर चिल्ला रही है. And the rival team is rival partners are और there. जो उसका विरोधी जो टीम है, The group of people that side of the stadium, this side. स्टेडियम के दूसरी तरफ जो बैठे हैं, एक तरफ और दूसरे तरफ, Their spirit is in the game. उन सारे लोगों का मन उस खेल से जाकर जुड़ जाता है. What about you? मेरे और आपके बारे में क्या है? When your spirit is in this game. जब आपका आत्मा Amen. इस खेल से जुड़ जाए. Hallelujah. Amen. Amen. You will understand. तब आप समझ जाएंगे. Read this verse again. इस वचन को फिर से पढ़ें. It says, कहता है, for whosoever is born of God overcometh the world. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है. Are you born again? क्या आपने नया जन्म पाया है? Amen. आमेन. Then तब you are an overcomer. आप संसार पर जय प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं. Amen. Amen. You may not know how much you possess. और आपको भी शायद खुद पता ना हो कि आपके अंदर कितनी सामर्थ्य निहित है. The devil knows that. शैतान को बखूबी मालूम है. He won't allow you to tap it. वो आपको चाहेगा कि उस चीज में तू मत जाना.
Amen. आमेन। Because the time you tap it, क्योंकि जैसे ही तू परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करेगा, you're going to release God's power. तू परमेश्वर की सामर्थ शैतान के ऊपर लागू करेगा। Amen. आमेन। Whoever is born of the Holy Ghost, जो पवित्र आत्मा का जन्मा है, born again, जो नया जन्म पाया है, he overcomes the world. वो संसार पे जय प्राप्त करता है। And what does it say? और फिर बोलता है, This is the victory और वो विजय क्या है that overcometh. जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है? This is the victory that overcomes. यही वो विजय है जिससे हम जय प्राप्त करते हैं। That is और वो है your faith. हमारा विश्वास। Oh, मैन, hallelujah. हालेलुया। Don't lose faith. विश्वास एक पल के लिए भी नहीं खोना है। Faith, mighty faith, the promise sees and looks to God alone. विश्वास, सामर्थ्य विश्वास केवल और केवल परमेश्वर की ओर ही देखता है। Laughs at impossibilities असंभव दिखने वाली चीज जब सामने आती है, उस पर हंसता है and says, और क्या बोलता है? it shall be done. ये तो पूरा होगा, Hallelujah. पूरा होगा। Glory. हालेलुया। Glory to God. पूरा होगा। Our souls will be saved. हमारी आत्मा लोगों की बच्चे की, Household will be saved. घराना उद्धार पाएगा। Revival will come. आत्मिक जागृति आएगी। Not because who I am, इसलिए नहीं कि मैं कौन हूँ, but who lives in me. परंतु इसलिए कि मेरे अंदर किसने वास किया है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Look inside. अपने अंदर देखें, Not to your weaknesses. अपने अंदर की कमजोरियों की तरफ नहीं, Don't look at your failures. अपनी असफलताओं की ओर देखना बंद कर दीजिए। Don't look at situations. अपनी परिस्थितियों की तरफ देखना बंद कर दीजिए। Look inside. अपने अंदर देखना शुरू करिए। The one who reigns in you. तेरे अंदर से जो राज करता है, King of kings and Lord of जो lords. राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया। He reigns inside. वही हमारे अंदर से राज करता है। Something happened the day you were born again. जिस दिन तूने नया जन्म पाया था, उस दिन कुछ हुआ था। You became a child of God. उसी दिन परमेश्वर की संतान बन गया था। And John says, और यूहन्ना कहता है, I write unto you fathers, हे पितरों, मैं तुमसे कहता हूँ, because you have known him that is from the beginning. क्योंकि तुमने उसे जाना है जो आरंभ से था। I'm reading 1 John 2nd chapter, मैं पहला यूहन्ना और 13 and उसका 14. दूसरा अध्याय और उसकी 13 और 14 आयत को पढ़ रहा I write unto you young men, you have overcome the world, the wicked one. I write unto you children, you have known the Father. हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। Young man, हे जवानों, you have overcome the devil. तुमने उस दुष्ट शैतान पर जय पा लिया है। Are you listening? क्या तू सुन रहा है? Young people, जवान लड़के, क्या तू सुन रहे हो? because the word of God dwells in you. इसलिए कि परमेश्वर का वचन तेरे अंदर वास करता है। When you are called to serve God, do it honestly. जब तुझे सेवा के लिए बुलाया जाए तो उसे वफादारी के साथ करना। Don't play double games, डबल गेम नहीं खेलना। world and church. दुनिया में भी अच्छा समय बिताए, कलीसिया में भी समय बिताए। Where are you when young people's meeting is going on? तो कहाँ हैं जब यहाँ पर जवान प्रार्थना सभा में आ रहे हैं? Remember, याद रखना, you will not overcome the world तू संसार के ऊपर जय पाने में तुझे दिक्कत होगी if you keep wrong company. यदि तू गलत दोस्तों के साथ में Don't उठता please बैठता है। men. Don't please उन people. दोस्तों को और उन मनुष्यों को खुश करने का प्रयास मत कर। Maybe that friend of yours will get saved someday and you will be behind him. शायद तेरा वो दोस्त कहीं और से उद्धार पाकर तू अपने विश्वास में पीछे हो जाएगा और वो आगे निकल जाएगा। Young men, जवानों, I write to you, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है you have overcome the devil. कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। Amen. Amen. It's not that you will overcome, वो ये नहीं बोल रहा जवानों तुम जय पाओगे, you have. तुमने जय पाया है। Because क्योंकि
word of God dwells in your heart. परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर तुम में बना रहता है। Amen. आमेन। Give time to God. परमेश्वर को समय दें। Be in every prayer meeting. हर एक प्रार्थना सभा में हाजिर रहें। Come before time. समय के पहले उपस्थित हो Spend जाएं। sometimes it is good to come and see this church is open. Some people are praying already here. और कभी ये देखने में अच्छा लगता है चर्च खुला हुआ है, लोग पहले से ही आकर यहाँ बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। Young people are coming and praying. जवान लोग भी आ रहे हैं और यहाँ पहले से बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। So encouraging to know कितना प्रोत्साहन मिलता है इसे जानना। that secret prayer वही आपकी वो गुप्त प्रार्थना will be rewarded openly by God. उस दिन सारे दुनिया के सामने तेरा प्रभु तुझको प्रतिफल देगा। Hallelujah. हालेलुया। Give God first place. परमेश्वर अपने प्रभु को प्रथम स्थान दे। Make this your prayer. ये प्रार्थना अपने जीवन की निजी प्रार्थना बना ले। I'll close with this. मैं इस बात को बोलकर आज बंद कर रहा हूँ। Luke's Gospel 10th chapter. लूका रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय 19th verse says, और 10 के 19 आयत में ऐसा Behold, लिखा है, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, upon all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। Amen. आमेन। I have given you the power. थैंक यू जीसस। मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। Hallelujah. थैंक यू जीसस। आई रिसीव। Nothing और किसी वस्तु कोई भी चीज shall by any means harm you. तेरी हानि नहीं कर पाएगी। No one, कोई भी नहीं कर पाएगा। no weapon कोई हथियार नहीं that is formed against you जो तेरे विरुद्ध चलाने बनाए गए हैं shall not prosper. वो हथियार कामयाब नहीं होंगे। Who said it? ये बात किसने कही? God. परमेश्वर के मुंह की वाणी है। Hallelujah. हालेलुया। Devil, शैतान with scorpions and serpents सांप बिच्छू and demons and darkness दुष्टात्माएं अंधकार की cannot prevail. तुझ पर प्रबल नहीं हो पाएगी। Reign in me, sovereign Lord. सर्वशक्तिमान सर्वभौमिक परमेश्वर मुझ पे राज कर। Captivate my heart. मेरे हृदय को तू ले ले। Let your will be done. तेरी इच्छा पूरी हो। Reign in me. मुझ में राज कर। Make this your prayer this morning. आज सुबह इसे अपनी प्रार्थना बना ले। Yes, hallelujah. Sovereign Lord, Jesus' name. Reign in me. Reign in me. Reign in me. Sovereign Lord, reign in me. Captivate my heart. Let your kingdom come. Establishing your throne. Let your will be done. Reign in me. Sovereign Lord, reign
in